Good morning, everyone, and welcome to my session on use of ICT for students of higher education. It is going to be a part of co-curricular learning, co-curricular activity with the regular timetable, regular syllabus that has been designed for you. It is especially a session on NPTEL and SWAYAM. SWAYAM is a platform of the Government of India which allows you to learn from A to Z. That is, all kinds of courses, all kinds of activities are available here. Swayam is a centralized platform where 10 coordinators work together to bring all kinds of knowledge under one umbrella for you. It was started in the form of NPTEL first of all. NPTEL is an IIT initiative which deals with the technology enhanced learning. TEL refers to technology enhanced learning, and all the IITs join together to deal with such an initiative that the classes could be given to the students without fail. Even the learning could be made as per student centric, as per student specific, personalized at their own timings. So we start with this. Let us come to the meaning of SWAYAM. SWAYAM stands for Study Webs of Active Learning for Young Aspiring Minds. स्टडी वेब्स मतलब पढ़ाई लिखाई का जाल, जैसे वर्ल्ड वाइड वेब है ना, तो वैसे स्टडी वेब फॉर ऑफ एक्टिव लर्निंग दैट इज लाइव लर्निंग. जो आप पीडीएफ पढ़ते हैं वो एक तरह से पैसिव हो जाता है, लेकिन जब आप किसी की आवाज सुन रहे होते हैं, जब आप किसी को देख रहे होते हैं, जब आप कुछ होते हुए देख रहे होते हैं, दैट इज एक्टिव लर्निंग. जब आप उसमें पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, दैट इज एक्टिव लर्निंग. So study webs of active learning for whom? For you. That is young aspiring minds. If you wish to learn something and you are not getting the opportunity to learn that, उसके लिए आपको मौका है. You as an aspiring mind, if you actually aspire for learning something, the study material would be available for you. The classes would be available for you in the form of videos, in the form of lectures, in the form of PDFs, that all would be available to you. And for your testing, you will get the internal assessments weekly, and a final exam also. That we will deal with it in detail. But SWAYAM, as a full form of SWAYAM, it is an acronym and it stands for Study Webs of Active Learning for Young Aspiring Minds. It is part of Education 4.0. Education 4.0 means the fourth generation of education in India itself, where the focus is not only on information, rather, it is on skill development, it is on personalized learning, it is on the ownership of the learner for taking the classes, for making the learning as comfortable as possible for the learner. It is beyond that one time exam in the annual system. Now the semester system, and in semester system also the continuous evaluation. You would have heard of the class tests, you would have heard of the presentations, assignments, that all is evaluated throughout the semester, throughout the year for the performance. So here it helps a lot. What do we call the courses which are available online? Generally, all such courses which are available for the students, for the faculty, for the school teachers, for the corporate employees, for housewives even, because they are beyond a particular
assigned audience. They are for all the sections of the society. They are for masses. Therefore we call them as massive courses. Massive because the number of students is not defined, not limited. There can be any number of students in one course. Hence it is massive. Open. Open for all. No basic minimum requirement for learning. For example, you want to do BTech, you have to have intermediate, that too in science with mathematics and with a certain number of marks, minimum number of marks. उसके बाद ही आप allowed होते हैं. Similarly, if you wish to go to pharmacy, बी फार्मा, तो फिर वो कहते हैं मैथ्स या साइंस में आप मैथ्स या बायोलॉजी से आपने इंटरमीडिएट पास किया हो. ऐसी कोई मैंडेट इधर नहीं है, इसलिए ये ओपन कोर्स है. मैसिव ओपन एंड online courses available online at your own reach with your own comfort. Learn anywhere, anytime, and anyone can learn it. It is self learning. Self learning means आप अपने आप इसको सीख सकते हैं. आपको टीचर की हर समय जरूरत नहीं है, क्योंकि टीचर ने ऑनलाइन में आपको बहुत सारी चीजें समझा दी हैं, वीडियोस बना दिए हैं, ऑडियोज वीडियोस के साथ साथ आपको पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड कर दिए गए. दैट इज सेल्फ लर्निंग एंड सेल्फ पेस्ड लर्निंग. कई बार क्या होता है ना, 1 घंटे की क्लास है, उसी 1 घंटे में आपको ठीक से समझना पड़ेगा. अगर आप उस 1 घंटे में अटेंटिव नहीं है, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप भूखे हैं, तो फिर आपको समझने में दिक्कत आती है, बिकॉज यू लूज योर इंटरेस्ट, यू लूज योर कॉन्सेंट्रेशन. पर ये सेल्फ पेस्ड लर्निंग क्या कहती है, आप उस वीडियो को स्लो मोड में, फास्ट मोड में, 2 बार में, 4 बार में, जैसे चाहे वैसे सुन सकते हैं. मतलब दैट लेक्चर कैन बी अटेंडेड एट योर ओन पेस. Similarly, it is personalized learning. Personalized means you can ask questions, you can write your queries on the discussion forum, and you can adapt your strategy to deal with these assignments, these questions, etc. So learning is available for the students in modes 24/7 at their own pace. Distinction between time and space has become blurred with this approach. मतलब ना तो आपको समय का बंधन है, ना तो आपको स्थान का बंधन है. जरूरी नहीं है कि एक पर्टिकुलर जगह पे, एक पर्टिकुलर टाइम पे ही आप जाए तो ही आपकी लर्निंग होगी, क्योंकि मूड्स आपको 24 घंटे प्रतिदिन अपने हिसाब से पढ़ने का मौका देते हैं. इसका जो इनिशिएटिव जो था ना, ये स्वयं, दैट स्वयं हैज बीन इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विद द प्रिंसिपल ऑफ एक्सेस, इक्विटी एंड क्वालिटी. एक्सेस, इक्विटी एंड क्वालिटी मतलब हमारे हर एक लर्नर को स्टडी मटेरियल के लिए आसान एक्सेस मिले, अप्रोचेबल हो. इक्विटी, सबको एक समान अधिकार मिले पढ़ने का, सीखने का, और क्वालिटी कंटेंट मिले. तो क्वालिटी के लिए क्या कर रहे हैं हम लोग? क्वालिटी के लिए दी अप्रूव्ड IITians, दी अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशंस ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, दी अप्रूव्ड NIOS, UGC kind of things, only they are getting chance to make such videos, such content. तो बहुत अच्छा स्टडी मटेरियल आपको उस पर अवेलेबल होता है. वेबसाइट है swayam.gov.in. देन वी कम टू किसके लिए? तो 9th स्टैंडर्ड से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक, फैकल्टी मेंबर्स तक, सबके लिए इस पे कोर्सेज अवेलेबल होते हैं. फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं. एक छोटी सी फीस है जो सर्टिफिकेशन के लिए चाहिए होती है, वो जब आप एग्जाम देते हैं तब देना होता है. अदरवाइज इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर एवरीबडी एंड एनीबडी.
कौन कराता है इस तरह के कोर्सेज? तो देखिए इसमें आपके पास 9-10 कोऑर्डिनेटर्स के नाम यहाँ मेंशन है। AICTE, CEC, इग्नू, IIM बैंगलोर, NCERT, NIOS, NITTTR, NPTEL और UGC। इसके अलावा एक जो 10वां अभी एडेड है दैट इज INI, इंस्टीट्यूशंस ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। BHU, AMU जैसी यूनिवर्सिटीज को INI का दर्जा मिला हुआ है। इस तरह के संस्थान से आपको पढ़ने का मौका मिलता है। ये वो संस्थान, ये वो 10 कोऑर्डिनेटर समन्वयक है जो आपको आपके लिए स्टडी मटेरियल प्रोड्यूस करते हैं अप्रूव्ड फैकल्टी मेंबर्स के द्वारा। ये वैसे तो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में 1963 में शुरू हो गया था, पर इंडिया में मूट्स के फॉर्म में 1990s में आया और फिर 2000 के बाद इधर ये स्वयं जैसा कॉन्सेप्ट आ गया। तो स्वयं क्या करता है, आपको बेहतर सीखने का मौका देता है। स्वयं देखिए 2 तरीके से है ना, स्वयं में आपको ये भी पता चल गया फुल फॉर्म क्या है, और क्योंकि ये आपके अपने पेस पे पर्सनलाइज्ड लर्निंग है तो उस हिसाब से भी ये स्वयं नाम इसका बहुत अच्छा और परफेक्ट सा लगता है। अब आते हैं बात NPTEL की। NPTEL स्वयं की तरह स्वयं में से एक कोऑर्डिनेटर है। NPTEL इज वन ऑफ द कोऑर्डिनेटर्स ऑफ स्वयं। लेकिन क्योंकि NPTEL ने ही स्वयं को NPTEL ने ही इस तरह की लर्निंग को शुरू किया था, इसलिए स्वयं के साथ साथ NPTEL का नेम हमेशा चलता है और NPTEL को ही जिम्मेदारी मिली हुई है स्वयं को कोऑर्डिनेट करने की। तो IIT मद्रास ने सबसे पहले इसको शुरू किया। IIT मद्रास ही आज तक NPTEL का कोऑर्डिनेटर है। उसके साथ IIT कानपुर, बम्बई, दिल्ली, गुवाहाटी, रुड़की, बैंगलोर और ISC बैंगलोर और IIT खड़गपुर, ये सारे लोग इनके साथ मिल गए हैं। ये सारे कोर्सेज इनकी NPTEL की सेंट्रलाइज्ड सेंटर पर अवेलेबल है और NPTEL स्वयं का हिस्सा है। तो अगर आपको कोई भी NPTEL का कोर्स करना है तो आपको swayam.gov.in पे जाना है। वहां पे आपको NPTEL के अंदर सारे कोर्सेज अवेलेबल मिल जाएंगे। आज की डेट में बात करें तो 3200 से ज्यादा कोर्सेज अवेलेबल हैं आपके लिए, मेरे लिए, सबके लिए, और अलग अलग फील्ड्स में। चाहे आप साइंस एंड इंजीनियरिंग की बात करें, चाहे ह्यूमैनिटीज की बात करें, चाहे बायोलॉजिकल साइंसेज, मैनेजमेंट या कोई और, इसके अलावा इंटरडिसिप्लिनरी, फॉर एग्जांपल एनवायरमेंटल स्टडीज, साइंस एंड कल्चर, कल्चर एंड टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी एंड लैंग्वेज, ये सारा कुछ अवेलेबल है NPTEL के अंदर। 3200 कोर्सेज हैं। बाकी कोऑर्डिनेटर्स जो और अपने कोर्सेज दे रहे हैं वो तो है ही है, ये आपको NPTEL के अंदर अवेलेबल मिलेंगे। कोर्स स्ट्रक्चर 4 हफ्ते, 8 हफ्ते, 12 हफ्ते, 3 तरीके से किए गए हैं। आप अपनी सुविधा के हिसाब से कोर्सेज को चुन सकते हैं और हर एक कोर्स में आधे आधे घंटे के वीडियोस एट अ मैक्सिमम लेंथ ऑफ 30-35 मिनट्स, बल्कि 20-20 मिनट के भी हैं, कुछ 10-10 मिनट के भी वीडियोस हैं जो आपके लिए अवेलेबल है। आप अपनी सुविधा के हिसाब से उनको सुन सकते हैं। इफ यू विश टू चेंज द लैंग्वेज तो ट्रांसक्रिप्ट की भी सुविधा है। आप लैंग्वेज चेंज करके डिफरेंट लैंग्वेजेस में ट्रांसक्रिप्ट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। और वीकली असाइनमेंट होता है इसमें, हर हफ्ते एक असाइनमेंट दिया जाता है, 10 क्वेश्चंस, 5 क्वेश्चंस, 20 क्वेश्चंस का, ऐसे मल्टीपल चॉइस मोस्ट ऑफ द टाइम्स होता है। वो आपको मदद करता है। कुछ कोर्सेज के डिजाइन के हिसाब से सब्जेक्ट स्पेसिफिक, जैसे आर्ट्स है या फिर मतलब डांस, म्यूजिक है, तो उसमें अलग तरीके के असाइनमेंट भी हो सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट इज मल्टीपल चॉइस। और डिस्कशन फोरम एक और ऐसा प्लेटफॉर्म है इनका जिसमें आप अपनी क्वेरीज एंड क्वेश्चंस रख सकते हैं, which would be addressed by the course coordinator online through discussion forum। उसके अलावा भी जब आप वीडियो देख रहे होंगे तो उसमें वीडियो में आपको एक नीचे एक बटन मिलेगा आस्क क्वेश्चन का।
So if you have any question, that question would be posted to the course coordinator और आप उसको वो उसका जवाब आपको पहुंचाएंगे। देखिए, स्वयं कोर्सेज के तीन तरीके हैं, तीन तरीके से आप उसको अपने जीवन में ले सकते हैं, अपनी स्टडीज में इंक्लूड कर सकते हैं। पहला, ओनली फॉर लर्निंग एंड स्किल एनहांसमेंट, आपको सीखना है, पढ़ना है, बात खत्म। तो आप जाइए swayam.gov.in पर और अपनी पसंद का कोई भी कोर्स रजिस्टर करके उसको पढ़िए, सीखिए और बंद कर दीजिए। दूसरा ये कि आपको सर्टिफिकेट चाहिए, यू आर इंटरेस्टेड इन गेटिंग द सर्टिफिकेट, तो फिर सर्टिफिकेट के लिए क्या करना होगा, उसका एग्जाम देना होगा। और वो एग्जाम कहाँ होगा, वो एग्जाम कहीं आपके किसी एक स्टडी सेंटर पर, ये ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर पर होगा। आजकल इतना अच्छा हो गया ना कि जब आप स्वयं और एनपीटीईएल के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं तो वो आपको मौका देते हैं कि आप अपना पिन कोड बताइए, एड्रेस में शहर के साथ साथ पिन कोड बताइए, नियरेस्ट पॉसिबल कंप्यूटर सेंटर आपको वो अलॉट करते हैं जिससे आपको पहुंचने में आसानी हो। 1,000 रुपए की नॉमिनल फीस है और जब से शुरू हुआ है तब से 1,000 रुपए ही फीस है, बिल्कुल इसकी फीस बढ़ाई नहीं गई है। आप जब भी सर्टिफिकेट लेना चाहें तो उस कोर्स के लिए एक टाइम आता है जिसमें आपको कहते हैं एग्जामिनेशन रजिस्ट्रेशन, ऑनलाइन ही करना है वो सारा काम और आप उसके लिए सर्टिफिकेट पा सकते हैं उस एग्जाम को पास करने पर। तीसरा क्रेडिट ट्रांसफर है, ये रजिस्टर्ड और इनरोल्ड स्टूडेंट्स के लिए होता है। कोई स्टूडेंट चाहे बीए कर रहा हो, चाहे बीकॉम कर रहा हो, चाहे बीटेक कर रहा हो, चाहे एमबीए कर रहा हो, ऐसे किसी भी कोर्स में अगर कोई बच्चा है तो अगर उसका कॉलेज लोकल चैप्टर के नाम से एनपीटीईएल के साथ रजिस्टर्ड है, फॉर एग्जांपल एकेटीयू के कॉलेजेस की बात कर ले तो एकेटीयू एज ए यूनिवर्सिटी उधर है, एनपीटीईएल के साथ है, और मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस हैव अ लोकल चैप्टर ऑफ एनपीटीईएल एट देयर सेंटर्स। तो लोकल चैप्टर होने की वजह से क्या होता है, उनका कोर्स स्ट्रक्चर और सिलेबस के हिसाब से कुछ कोर्सेज अवेलेबल है दैट कैन बी टेकन ऑनलाइन एज मूट्स थ्रू एनपीटीईएल स्वयं एंड द क्रेडिट्स अर्न ऑन दैट। क्रेडिट्स का मतलब होता है कि हर पेपर जो आप पढ़ रहे होते हैं ना उसके कुछ क्रेडिट्स असाइंड होते हैं, 3 क्रेडिट, 4 क्रेडिट, 6 क्रेडिट, 2 क्रेडिट, जो भी उसके हिसाब से अगर वो आपने ऑनलाइन में कोर्स किया है और आपने पास किया है तो उसके क्रेडिट्स आपकी मार्कशीट में रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, दैट इज कॉल्ड क्रेडिट ट्रांसफर। ये आपका चल सकता है। तो 3 ये पर्पसेस हो गए। चौथा एक अभी आया है, दैट इज इंडस्ट्री सिंक्रोनाइज्ड स्किल बेस्ड कोर्सेज, जो एनपीटीईएल प्लस के नाम से अवेलेबल है, लेकिन ये थोड़ा पेड कोर्सेज होते हैं, स्पेशली ट्रेनिंग काइंड ऑफ चीजें हैं ये, जो एडवांस्ड लेवल के ट्रेनर्स हैं उनके लिए है। तो आप इनको भी कर सकते हैं लेकिन इनकी फीस थोड़ा सा एक्स्ट्रा होती है जो आपको देनी होगी। ये बातें मैंने मोटी मोटी आपको बता दी हैं कि कैसे करते हैं। हाँ, अब बात ये आती है कि अगर आपको सर्टिफिकेट, इसके पास होने का सर्टिफिकेट चाहिए तो क्या चाहिए। तो पहले तो आप एनरोलमेंट कर लीजिए मूट्स के लिए, उसके बाद 25% एवरेज मार्क्स ये इंटरनल के हिसाब से देते हैं और 75% मोटा मोटा एक्सटर्नल के लिए, जिसको कि प्रॉक्टर्ड एग्जाम बोलते हैं। ये वैरी भी कर सकता है, देखिए 25 से 40% तक इंटरनल वैरी कर सकता है, उसी तरह से 75 से 60 तक वैरी कर सकता है आपका प्रॉक्टर्ड एग्जाम। ओवरऑल 100% 100 मार्क्स का होगा। फाइनल स्कोर जो होगा वो असाइनमेंट स्कोर यानी कि इंटरनल्स और एग्जाम स्कोर यानी कि प्रॉक्टर्ड एग्जाम स्कोर दोनों को मिलाकर होगा। दोनों में आपको 40-40% मार्क्स मिनिमम चाहिए होंगे, जैसा कि आपका नॉर्मल पासिंग क्राइटेरिया है किसी भी यूनिवर्सिटी कॉलेज का, मिनिमम 40%, उसी को ये फॉलो करते हैं। तो इंटरनल और एक्सटर्नल में अलग अलग 40% और ओवरऑल 40% आपको चाहिए होगा कम से कम, ताकि आपको सर्टिफिकेट दिया जा सके।
दूसरी एक बात ये कि इसमें जैसे 8 हफ्ते का कोर्स है तो वो बेस्ट 6 असाइनमेंट्स का स्कोर लेंगे। 12 हफ्ते का कोर्स है तो वो आपका मुझे लगता है 9 बेस्ट असाइनमेंट्स का स्कोर लेंगे। उसी तरह 4 हफ्ते के कोर्स में 3 बेस्ट असाइनमेंट्स ले लेते हैं, मतलब दे गिव यू अ स्कोप की कहीं एक में कोई आपसे थोड़ी बड़ी गलती हो गई होगी, दैट इज अलाउड एंड एक्सेप्टेबल। नेक्स्ट वी कम टू हाउ इट इज बेनिफिशियल टू यू विद अस। तो आप जिस भी कॉलेज में पढ़ते हैं वहां का एक लोकल चैप्टर होगा, उसकी एक आईडी होगी और क्रेडिट ट्रांसफर की सुविधा उस पर उपलब्ध होगी, तो आप कर सकते हैं। जैसे हम लोग अभी बीबीडी आईटीएम की बात कर रहे हैं तो बीबीडी आईटीएम का हमारा अपना लोकल चैप्टर है एंड दैट लोकल चैप्टर इज नेम्ड एज बाबू बनारसी दास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट और इसका लोकल चैप्टर आईडी 201 है। इसके लिए सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहते हैं, एसपीओसी, दैट इज प्रोफेसर दिवाकर यज्ञसेन, रूम नंबर 111 ई ब्लॉक। अगर आप चाहें तो आप जाके उनसे वहां संपर्क भी कर सकते हैं, आपकी कुछ क्वेरीज हो तो आप पूछ सकते हैं। ये देखिए लेआउट है नॉर्मल, कैसी दिखती है वेबसाइट। जब भी आप लॉगिन करेंगे आज की डेट में तो आपको swayam.gov.in लॉगिन करने पे इस तरह का पेज दिखेगा। यहां आप अपने कोर्स का नाम टाइप करके पता कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। दूसरा सर्च कैटलॉग इधर दिया हुआ है, दैट इज विद द फिल्टर्स, मतलब आप नेशनल कोऑर्डिनेटर वाइज, कोर्स कोऑर्डिनेटर वाइज, कोर्स ड्यूरेशन वाइज ऐसे अलग अलग ढूंढ सकते हैं। और भी नीचे इसमें कैटेगरीज हैं, सब्जेक्ट वाइज ढूंढ सकते हैं आप, हिस्ट्री, लैंग्वेज, लिंग्विस्टिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ऐसे करके आप इसमें फर्दर ढूंढ सकते हैं। ये कोर्सेज न सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए बल्कि फैकल्टी के लिए भी काम के होते हैं। बहुत से कोर्सेज में साथ में लिखा होता है अप्रूव्ड एफडीपी, एआईसीटीई अप्रूव्ड एफडीपी। तो अगर फैकल्टी इन कोर्सेज को करती है तो उनको रजिस्ट्रेशन करते समय 1,000 के बजाय 1,100 रुपए लेते हैं। 100 रुपए वो एफडीपी सर्टिफिकेट का अलग से लेते हैं आपसे। अगर आप चाहेंगे तो आप 4 हफ्ते के किसी भी ऑनलाइन कोर्स को एफडीपी के फॉर्म में दिखा सकते हैं, जो आधे हफ्ते मतलब 3 दिन के एफडीपी के बराबर होगा। सिमिलरली 8 वीक्स के कोर्सेज आर इक्वल टू 1 फुल एफडीपी ऑफ 1 वीक और 12 वीक्स वाला 1.5 वीक्स, दैट इज 10 डेज एफडीपी के बराबर हो जाएगा। तो इट इज अप टू यू, आप चाहें तो आप नॉर्मल सर्टिफिकेट लें, सिर्फ कोर्स का सर्टिफिकेशन ले लें, और अगर आप एफडीपी भी चाहते हैं तो आपको 100 रुपए की एक्स्ट्रा फीस लगती है। दिस इज एप्लीकेबल ओनली फॉर फैकल्टी मेंबर्स। मेंटोर सर्टिफिकेट भी एक सुविधा है विच इज फॉर द स्टूडेंट्स, फॉर द टीचर्स, द टीचर्स who have registered for the course, और अगर उनके साथ किसी स्टूडेंट ने इस कोर्स को रजिस्टर किया हुआ है तो वो स्टूडेंट को मेंटरशिप कर सकता है। दैट फैसिलिटी इज अवेलेबल थ्रू एसपीओसी। एसपीओसी क्या करता है, अगर वो देखता है कि उसके इंस्टीट्यूशन में, उसके लोकल चैप्टर में एक फैकल्टी ने, 4 फैकल्टी ने कोर्स ज्वाइन किया और 40 बच्चों ने किया है वही कोर्स, तो वो 10-10 बच्चों को एक एक फैकल्टी को असाइन कर देता है कि नाउ दे आर योर मेंटीज, यू आर देयर मेंटोर, और आप क्या करिए इसमें, आप इनको मदद करिए। मदद का मतलब सवाल का जवाब मत दीजिए, इनको याद दिलाइए, ये पहली बार कर रहे हैं, इनकी थोड़ी सी बूस्टअप करिए, इनको कोई चीज नहीं समझ में आ रही है उसमें आप मदद कर दीजिए, एग्जाम रजिस्ट्रेशन में मदद कर दीजिए। दैट ऑल कैन बी पार्ट ऑफ मेंटरशिप। असाइनमेंट के लिए याद दिला दीजिए अगर भूल रहा है। वैसे तो बहुत सारे रिमाइंडर्स आते रहते हैं बाय डिफॉल्ट फ्रॉम दी एनपीटीईएल एंड स्वयं इटसेल्फ, लेकिन मेंटर का यही काम होता है। अगर ऐसा करने पे स्टूडेंट सर्टिफिकेट पा लेता है, उस कोर्स को कंप्लीट कर लेता है, तो एक मेंटरशिप सर्टिफिकेट टीचर्स को भी मिलता है, और इसमें टीचर का सर्टिफिकेशन लेना जरूरी नहीं होता है। अगर स्टूडेंट्स ने पास किया तो भी फैकल्टी को मेंटरशिप सर्टिफिकेट मिलेगा, उस कोर्स का सर्टिफिकेशन भले ही ना मिले। रजिस्टर करने के लिए swayam.gov.in है, आप इस पे जाके कर सकते हैं आसानी से।
पेज कुछ इस तरह से खुलेगा जिसमें आप दो तीन ऑप्शन है आपके पास, चार ऑप्शंस कह सकता हूं मैं। एक में तो ये कि आप अपना साइन इन करिए, साइन अप करिए, साइन अप नाउ है यहाँ पे, साइन अप करिए जिसमें आप अपना यूजर आईडी पासवर्ड खुद बना सकते हैं। नहीं तो दूसरा तरीका है कि जीमेल से, माइक्रोसॉफ्ट मेल से या फेसबुक से, उससे भी आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और बेस्ड ऑन दैट आपका अपना ये प्रोसेस बढ़ जाएगा। कोर्स स्पेसिफिक जब आप रजिस्ट्रेशन कर रहे होंगे तो आपसे दो तीन इंफॉर्मेशन वो मांगेगा, जैसे आपका नाम, मोबाइल नंबर, ये तो आप आसानी से दे लेंगे। फिर वो आपसे पूछेगा आर यू पार्ट ऑफ अ लोकल चैप्टर। तो एज अ स्टूडेंट आपको कहना है यस आई एम, यस, और यस करते ही वो आपको एक लिस्ट दे देगा स्टेट्स की। स्टेट्स की लिस्ट में आप सबसे पहले यूपी चूज कर लीजिए। फिर वो आपसे पूछेगा इंस्टीट्यूशन का नाम, तो आप उसमें स्क्रॉल करेंगे, ड्रॉप डाउन में आपको बाबू बनारसी दास इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी मिल जाएगा। टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, बाबू बनारसी दास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट मिल जाएगा। उसमें ब्रैकेट में उसका लोकल चैप्टर आईडी 201 भी लिखा होगा। इसको प्रोसीड करने के बाद वो आपसे पूछेगा डू यू हैव एन अपार आईडी। अपार आईडी होगा तो लिख दीजिएगा, नहीं होगा तो कोई बात नहीं है। और कॉलेज का एनरोलमेंट नंबर भी मांगेगा। जब आप एज ए स्टूडेंट कर रहे होंगे तो एनरोलमेंट नंबर जो आपका ATTU एनरोलमेंट नंबर है, हो सकेगा तो वो लिख दीजिएगा। नेक्स्ट इन लाइन आपको वो टर्म्स एंड कंडीशंस को अग्री करने को कहेगा, आप उसको करते हुए आगे बढ़ जाइएगा। जैसे ही आप कोर्स को रजिस्टर कर लेंगे आपको एक वेलकम ईमेल आ जाएगा। वेलकम ईमेल में आप देख पाएंगे कि वो कोर्स कब शुरू हो रहा है, कैसे शुरू हो रहा है। उसके अलावा भी अबाउट द कोर्स में आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। तो आई होप आप सबको ये चीज समझ में आई होगी। अगर किसी तरह का कोई डाउट है तो यू कैन राइट टू मी एट my email, that is kaushalyadav@bbdnitm.ac.in. With this I stop this for the day. Thank you very much for learning with me. Wish you all the best for learning on SWAYAM and NPTEL platform.